Hello everyone, welcome to the channel. After a long time, I am preparing videos again. In the last couple of videos, I have told you regarding agricultural optional, where I have discussed with you all regarding preparation of agricultural optional, how to decode syllabus, how to connect the syllabus with book list and resources. Also also besides all this, I have told you that how can you decode the previous year question paper, the question come answer booklet, and all sorts of things. As many of the aspirants have requested me to make similar videos regarding gs papers, so I thought that I will be preparing videos on decoding syllabus of GS UPSC GS papers in next few videos. Okay, so here is the first video of that series, and here I am going to tell you regarding GS paper 1, how to decode GS paper 1 syllabus, and what are the books and resources that I have followed during my preparation journey, and that you may follow during your preparation journey too. But before beginning of this topic directly, I would like to tell you regarding some important points. In case you have not seen my earlier videos of the agricultural optional where I have discussed similar points, so I thought that I will be telling you again regarding those important points that you should keep in mind during any preparation. Okay, any preparation, whether you are preparing for any government job, not UPSC only, or any academic exams also. Few important points that I think important, and that you may follow during your preparation to ease your preparation, and to prepare in a short time, prepare in an efficient manner. Okay, so without further wasting time, let's get into the point. Okay, first I will tell you that important points that you should keep in mind before directly jumping towards any preparation. Okay, what are the important points? Look, before I prefer to follow this simple rule that one should keep in their mind, that there are three things: syllabus, previous year's question paper, and experiences. uh, that are the three main important things that one should keep in their mind and one should follow before directly beginning their own preparation. Why? Look, one should go through the syllabus of the examination first thoroughly. Okay, because before before preparing, you should know the demand of the examination, right? The demand of the examination, and without going thoroughly this syllabus, you cannot know that what the examiner wants from you. So just go through the syllabus and previous year's question paper. Why? Because previous year's question paper will help you to understand the themes, the repeated themes that are mostly asked in any examination. Okay, so, and also the pattern of the examination that you can know from looking the previous year's question paper. Pattern of examination means whether the MCQ type of questions are coming, which type of MCQs, whether they are the match the following type of question, or the statement based question. Okay, the statement based question or assertion reasoning based question type. So before beginning of any preparation, uh, looking into the syllabus and previous year's question paper are very much important. And experiences of what? Experiences, your own experiences with, like, many of us who are preparing for any examination in the age of 20 to 30 age brackets, we are, in our school days or in college days, we might have given any competitive examination na. From there, you must have some learning. So try to utilize those learning into this exam preparation also. Other than this, you should talk to
other senior or junior who have earlier attempted this examination that you are going to appear now. Okay, so you should talk to experienced people also, okay, to learn from their experiences, okay. So I think that these three things are much more important before jumping directly into any preparation. ठीक है, क्यों मैं ये बता रही हूँ कि देखिए मैंने मेरे जो एग्ज़ाम देने के अनुभूति से मुझे ऐसा लगा है कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि पहले आप एग्ज़ाम के डिमांड को समझिए. बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि बस उनको मन हुआ कि मैं ये एग्ज़ाम देने की ट्राई करता हूँ और वो बस जंप कर देते हैं. पहले दिन से कुछ किताबें लेकर बैठ जाएंगे. मुझे ये तरीका सही नहीं लगता है. मुझे लगता है कि पहले आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना चाहिए. वो एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि यूपीएससी के ही हो, कुछ स्टेट पीसीएस के हो सकते हैं, कुछ और गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, या कोई एकेडमिक जॉब हो सकता है. उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उसका सिलेबस को पहले मुझे लगता है अच्छे से स्टडी करना चाहिए. और एक्सपीरियंसेस, आप खुद जो एग्ज़ाम दे चुके हैं पहले, उससे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिली है, उसको आप पहले आपके ब्रेन में दोहराइए कि क्या मुझे सीख मिली थी उस एग्ज़ाम से, और बातें कीजिए. जो पहले आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वो एग्ज़ाम पहले जो लोग दे चुके हैं उनसे भी आप सीखने की कोशिश कीजिए, उनके एक्सपीरियंसेस से. ठीक है, और फिर आप जब ये आपका डिसाइड हो गया ना, फिर आप अकॉर्डिंगली प्लानिंग पे ध्यान दीजिए, और प्लान जो आप डिसाइड कर रहे हैं खुद के लिए, फिर आप एग्जीक्यूट भी करना ट्राई कीजिए. और सेकेंड चीज़ दैट आई वुड लाइक टू मेंशन दैट आई थिंक दैट प्रिपरेशन, second thing, that preparation should be in a layered approach. What is the layered approach? I came to know about this layered approach from Neha Banerjee ma'am's vlog that she has written. And I also followed this layered approach during my preparation also. So basically layered approach means that at first you should build your basic foundation. Only after that preparation of basic foundation, you should move towards advanced books, and accordingly you should try to update all your basic foundation and advanced book preparation with updation of current affairs, and then only you should move towards test series. मीन्स पहले आप ना वो स्टेयर्ड अप्रोच में चलिए, डायरेक्ट जंप मत कीजिए कि आप मतलब बेसिकली एग्जाम्पल अगर देना हो आपको, मैं ऐसे बोलना चाहूँगी कि आप पहले प्लस माइनस, फिर डिवीजन, ये सब मल्टीप्लिकेशन, ये सब आप सीखेंगे ना, उसके बाद ही आप हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स में जा सकते हैं. ठीक है, आपको अगर बेसिक ही अच्छे से नहीं पता है और आप कुछ और एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो अच्छे से नहीं हो सकता है. इसीलिए आप पहले एनसीईआरटी, बेसिक एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए. उसके बाद ही जो भी, अब सब एनसीईआरटी नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको कि कौन कौन सा एनसीईआरटी रेलेवेंट है. आप पहले बेसिक एनसीईआरटी जो कि रिक्वायर्ड है वो आप पढ़िए. उसके बाद एडवांस बुक्स पे जाइए, फिर धीरे धीरे आपको जब समझ में आने लगेगी, उसके बाद ही आप करंट अफेयर्स पे जाने के करंट अफेयर्स को कनेक्ट करना स्टार्ट कीजिए, और फिर अकॉर्डिंगली आप एमसीक्यू या टेस्ट सीरीज ये सब सॉल्व करने के लिए जा सकते हैं. ये मेरे को लगता है. ठीक है, तो एक स्टेयर्ड अप्रोच में, एक लेयर्ड अप्रोच में आप जाने की कोशिश कीजिए, और फिर रिवीजन, प्रैक्टिस एंड रिवीजन. ओके, सो पहला मुझे यही बताना था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वन शुड कीप इन देयर माइंड ड्यूरिंग preparation of any examination. It's not mandatory that it's UPSC or any state PCS, it's maybe any academic preparation also. Okay, now let's get into the main topic of this video, then how to decode GS paper 1, how to decode GS paper 1 syllabus. Okay, so look, here is the GS paper 1 syllabus, and here is the GS paper 1 syllabus, right? Here is the GS paper 1 syllabus, and I have for your benefits, I have marked the GS paper 1 syllabus. I have made it into several small topics and micro topics, so that it can be easy for you to understand the syllabus first, and to decode the book list and resources accordingly. Look, पहले अगर आप अच्छे से देखेंगे ना सिलेबस को, तो आपको एक ऐसा ही वेग जैसा लगेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से बारीकी से देखेंगे तो आप इसको बहुत फ्यू टॉपिक्स पे, माइक्रो टॉपिक्स पे डिसाइड कर सकते हैं. जैसे जीएस पेपर 1 अगर है तो ब्रॉडली क्या है, इसमें हिस्ट्री है, सोसाइटी है,
और ज्योग्राफी है। अब आप देखिए कि प्रीलिम्स और मेंस में कौन सा है और बस प्रीलिम्स ओरिएंटेड कौन सा है, बस मेंस ओरिएंटेड कौन सा है। देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में ही आपको क्वेश्चन आएगा, लेकिन सोसाइटी एक है जो ओनली मेन स्पेसिफिक है, ओनली मेन स्पेसिफिक है, ठीक है। अब आप देखेंगे ना तो ये ब्रॉडली आपको पता हो गया कि जीएस पेपर वन में हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी ये तीन सब्जेक्ट है। अब इसको फिर से फर्दर माइक्रो टॉपिक में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है ना, पहला यह जो दिया हुआ है, इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फ्रॉम लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ये जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, पहला ये जो है। फिर नेक्स्ट है, देखिए आप ये जो 2 पॉइंट्स है, ये है मॉडर्न इंडिया, ठीक है। और फिर जो है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है, जो कि ओनली मेंस में ही आता है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंट ओनली मेंस में ही आता है, ठीक है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है, नेक्स्ट पोर्शन में वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये भी ओनली मेंस में आता है, ये भी ओनली मेंस में आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में ओनली इतना ही है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, और एंशिएंट और मिडिएवल इसमें ही आ जाता है, एंशिएंट और मिडिएवल इसमें ही आ जाता है, पहले जो पॉइंट है। फिर मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंट और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो मेंस में मेनली आता है, ठीक है। प्रीलिम्स में उतना रिलेवेंस नहीं है। नेक्स्ट सोसाइटी, जो कि पूरा मेन स्पेसिफिक है, वो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सोसाइटी का पोर्शन है कि सोसाइटी, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, फिर रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, ये सब जो है ये सब सोसाइटी का पोर्शन है। ग्लोबलाइजेशन, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ये सब सोसाइटी का पोर्शन है, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो सब ज्योग्राफी का पोर्शन है, जो कि प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में ही आता है। यहाँ पे देखिए फिजिकल ज्योग्राफी का दिया हुआ है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी का ना यहाँ पे बहुत वेगली दिया हुआ है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, लेकिन आप अगर देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर अगर अच्छे से देखेंगे तो वहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी का भी बहुत सारा माइक्रो टॉपिक्स दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए लैंड फॉर्म्स हो गया, क्लाइमेट हो गया, नेचुरल वेजिटेशन हो गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी को भी ऐसे माइक्रो टॉपिक्स में डिवाइड करना ज़रूरी है, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में आसान हो जाए। फिर नेक्स्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, फिर यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना, अर्थक्वेक, सुनामी, ये मेनली करंट अफेयर्स जो चलता है वो है। और इंडियन ज्योग्राफी भी है, जो कि जीएस पेपर 1 सिलेबस में उतना मेंशन नहीं है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन काफ़ी आता है, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए अलग से लिख कर दे चुकी हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। आप अगर आप सिलेबस लेकर बैठे हो तो आप खुद भी ऐसे ही पहले डिकोड कीजिए कि ये जीएस पेपर 1 में मुझे ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी ये पढ़ना है, और मेंस में ओनली क्या आता है, जैसे मेंस में आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, ये सब आपका मेनली मेन स्पेसिफिक ही है, ठीक है। तो आपका एक बार अगर क्लियर हो गया ना कि मुझे क्या पढ़ना है, सिलेबस को कैसे डिकोड करना है, देन इट्स वेरी इजी टू डिकोड बुक लिस्ट ऑल्सो। Okay, so now I will be telling you that the book list and resources that I have followed during my preparation journey, and I am telling you that it's a very minimum basic resources, ठीक है, जो कि आपको पढ़ना चाहिए। और मैं हमेशा मानती हूँ कि आपका रिसोर्सेज बहुत कम होना चाहिए, रिविजन और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो आप आपका रिसोर्स को मिनिमम रखिए और प्रैक्टिस और रिविजन को ज़्यादा रखिए, ये की होता है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गेट टू द मेन पॉइंट that regarding the book list and resources that you may follow during your preparation. Okay, let's come to the first portion, that art and culture. देखिए आर्ट एंड कल्चर के लिए ना, मैंने जैसे बताया है पहले कि लेयर्ड अप्रोच में जाना अच्छा है, तो मैंने पहले आपको बताई हूँ कि बेसिक फाउंडेशन आपको क्लास एनसीईआरटी, क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उससे जो फाइन आर्ट्स की किताब आती है ना, आप उसको पहले पढ़ सकते हैं। फिर मैंने क्या किया था, जब ये मेरा हो गया था फाइन आर्ट्स की किताबें क्लास 11th एनसीईआरटी, उसके बाद मैंने एक प्रतीक नायक सर के आते हैं, उनके मैंने क्लास नोट्स मुझे ऐसे ही मिल गया था। आपको भी देखना, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप क्लास नोट्स उठाइए, उससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है, सब्सटेंशिएट कर सकते हो। और फिर अगर आपका ये दोनों बेसिक, अगर ये जो
ये अगर बेसिक आपका पहले क्लियर हो गया ना अच्छे से, उसके बाद आप धीरे धीरे एडवांस पे जाइए और करंट अफेयर्स पे जाइए। करंट अफेयर्स जो कि आपको मंथली मैगजीन में मिल जाएगा, डेली आप अगर द हिंदू या कोई न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और कैसे कनेक्ट करना है वो मैं बताऊंगी। जैसे मान लीजिए आपने क्लास 11 के एनसीईआरटी किताब या जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे मान लीजिए आपको आर्किटेक्चर मिलेगा, आर्किटेक्चर के टॉपिक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने वहाँ पे कलिंग आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और न्यूज़ में कुछ लिंगराज टेम्पल के बारे में चर्चा हो रही है, या मान लीजिए आदि शंकराचार्य के बारे में बात हो रहा है, तो आप जाइए आपके नोट्स की तरफ और वहाँ पे आप कलिंग आर्किटेक्चर रिवाइज कर लीजिए। भक्ति सूफी मूवमेंट, वहाँ पे जो भी मैप है, जो भी गुरुज के बारे में, सेंट्स के बारे में बात किया गया है, आप उसको रिवाइज कर लीजिए। तो जैसे मैंने बताया कि पहले आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको बेसिक सोर्स पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद एडवांस लेवल पे जाना चाहिए, फिर करंट अफेयर्स के अपडेशन कैसे करना कि जो भी टॉपिक चल रहा है न्यूज़ में आप उसको आप कनेक्ट करने ट्राई कीजिए जो कि आपका सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, ऐसे आर्ट एंड कल्चर हो गया। फिर मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया था, जैसे स्पेक्ट्रम की जो किताब आती है, राजीव भाई सर की जो बुक है, हाँ उसको अच्छे से पढ़ना। और कोई भी क्लास नोट्स, जैसे मैंने वो प्रतीक नायक सर के कुछ क्लास नोट्स मुझे मिल गए थे, तो उनके क्लास नोट्स मैंने थोड़ा फॉलो की थी, तो उसको मैंने पहले पढ़ा अच्छे से। उसके बाद करंट अफेयर्स जो मंथली मैगजीन, कोई भी एक मंथली मैगजीन, कोई भी इंस्टीट्यूट, ऐसा कोई अच्छा या बुरा नहीं है, कोई भी एक आप उठा लीजिए मंथली मैगजीन, उससे फिर सब्सटैंशिएट कीजिए। कैसे, फॉर एग्जांपल आपने मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे होम वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं और न्यूज़ में मान लीजिए लचित बरपुखान के बारे में कुछ न्यूज़ चल रहा है, या मान लीजिए कोई भी इवेंट चल रहा है जो कि अभी 25 ईयर्स कंप्लीशन हो रहा है, 50 ईयर्स, 75 ईयर्स, 100 ईयर्स कंप्लीशन हो रहा है ये साल में, जिस साल में आप एग्जाम में देने जा रहे हो, तो उसका जो हिस्ट्री किताब में जहाँ पे मेंशन है वो टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ के जाइए। ऐसे ना करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए मुझे लगता है। मतलब करंट अफेयर्स इज नॉट अ सेपरेट थिंग, नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट, यू हैव टू कनेक्ट इट विथ योर एग्जिस्टिंग सिलेबस। ओके, तो ऐसा हो गया मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। और एंशिएंट और मिडिएवल भी सेम है। एंशिएंट और मिडिएवल के लिए भी मैं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे अलग से नहीं दिया हुआ है। एंशिएंट और मिडिएवल के लिए भी ना, एंशिएंट और मिडिएवल हिस्ट्री के लिए भी मैंने क्या किया था, TNAU के जो क्लास 11 की किताब आती है, क्लास 11 की जो एनसीईआरटी किताब आती है उसको अच्छे से पढ़ना। और फिर कोई भी कोचिंग के जो नोट है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो नोट्स है उसको बस अपने सब्सटेंशिएट करना। ये दोनों हो गया, ये ही आपका बेसिक फाउंडेशन मटेरियल के लिए काम आएगा। बेसिक फाउंडेशन मटेरियल, ठीक है, बेसिक फाउंडेशन मटेरियल। फिर आपने एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। एडवांस लेवल में जा सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई भी मंथली मैगजीन हो गया, वहाँ से जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है उससे आप कनेक्ट कीजिए अपने सिलेबस को, ठीक है, कनेक्ट कीजिए अपने सिलेबस को। ऐसे ही एक स्टेयर्ड अप्रोच में, एक लेयर्ड अप्रोच या आप स्टेयर्ड अप्रोच कर सकते हैं कि पहले मैंने बेसिक फाउंडेशन किया, उसके बाद एडवांस बुक पढ़ी, फिर मैंने करंट अफेयर्स के साथ अपडेट कर रही हूँ मेरे नोट्स को, फिर मैंने MCQ वगैरह सॉल्व कर रही हूँ और प्रैक्टिस और रिविजन कर रही हूँ। ये है एक वे ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं डिस्कशन मेरा। पोस्ट इंडिपेंडेंट के लिए भी देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया ना आप अगर देखेंगे कि ओनली मेन स्पेसिफिक है और मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आता है 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड योर प्रायोरिटी ऑल्सो, दैट हाउ मच टाइम यू शुड इन्वेस्ट इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो मैंने क्या किया था, जैसे आपको प्रधानमंत्री एपिसोड मिल जाएगा ABP न्यूज़ आर्काइव में, एक यूट्यूब में ABP न्यूज़ आर्काइव में प्रधानमंत्री एपिसोड्स मिल जाएगा। वहाँ पे ना आपको एक विजुअलाइजेशन से बहुत अच्छे से ना पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री जो कि 1947 से प्रेजेंट इंडिया के बारे में वहाँ पे बहुत अच्छे से ना डॉक्यूमेंट्री किया हुआ है, आप उससे देखो। और उसके बाद मैंने विजन एज के जो क्लास नोट्स है वो ऐसे ही देखना आपको। मुझे मिला था ऐसे मेरे दोस्त से, तो मैंने
उसके क्लास नोट्स, मतलब मैंने ऐसे तो कुछ इन्वेस्ट तो नहीं की थी, मुझे वो बस क्लास नोट्स से मैंने थोड़ा रेफर की थी। आप वो कर सकते हो कि प्रधानमंत्री एपिसोड से थोड़ा आप इंटरेस्ट गेन करो, उसके बाद कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लास नोट से आप थोड़ा सब्सटेंशिएट कर सकते हो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ओनली 1 क्वेश्चन या 1 to 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आता है मेंस में। तो अकॉर्डिंगली आप अपना प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री भी मेंस स्पेसिफिक ही है, ओनली वर्ल्ड हिस्ट्री भी ओनली मेंस में आता है, ओनली मेंस, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री ओनली मेंस आता है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चंस आता है एवरी ईयर मेंस में, जीएस पेपर 1 में। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी मुझे लगता है कि आप जो भी पढ़ रहे हो ज़्यादा, मतलब यहाँ पे एकदम मतलब मोटे मोटी किताबें पढ़ने की मुझे नहीं लगती ज़रूरत है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो। मैं क्या की थी, मैंने वही एक प्रतीक नायक सर की जो क्लास नोट्स ऑनलाइन अवेलेबल प्लेटफॉर्म से मिलता है, मैंने वहीं से इसका तैयारी की थी। आपको कोई भी एक, मतलब यहाँ पे जो भी सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है 18th सेंचुरी से, तो आप अकॉर्डिंगली कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल उठा सकते हो और उससे गो थ्रू कर सकते हो। मेरा मतलब मेन जो कहना है कि देखिए, पहले आप वेटेड समझिए कि जैसे एंशियंट, मिडिवल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वो एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, इसका ही जो आर्ट एंड कल्चर है, ये सब का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंगली आप पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया या मान लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब देखना बस मेंस में आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम यहाँ पे थोड़ा कम टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रायोरिटी आप खुद ऐसे डिसाइड करो। नेक्स्ट चलिए सोसाइटी। सोसाइटी के लिए मैं क्या की थी, पहले ना सोसाइटी का सिलेबस बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत स्पेसिफिक दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या किया था, वही कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्लास नोट्स उठा लो। जैसे शुभम कुमार सर जो है ना, ये जो 2020 ईयर 1 जिसने लाए थे, उनका विजन है, इसके क्लास नोट्स उनके टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। आप उसको उठाइए और अकॉर्डिंगली एकदम जैसे सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ऐसे टॉपिक वाइज उनका नोट दिया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हो। मैंने क्या किया था, मैंने वैसे क्लास नोट्स रेफर किया और फिर जो भी टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एकदम रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएशन, ऐसे, या मान लीजिए कीवर्ड जो है ग्लोबलाइजेशन, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इसका मैंने क्या किया था, 1 पेज नोट्स बनाया था, ठीक है, ऑन ईच टॉपिक। मेक 1 पेज ऑन ईच टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल कम्युनलिज्म का 1 पेज नोट, रीजनलिज्म का, सेक्युलरिज्म का। That should be sufficient to write an answer of 150 words or 250 words. And after you were making your own note on each topic, then try to substantiate your static notes with current affairs later. For example, any case study that are mentioning in the newspaper or any example related to these topics that you can substantiate, you can use in your mains answer writing. So try to update those current affairs related material in your static note, ठीक है। तो सोसाइटी का मैंने पहले क्या करूँगी कि एक जैसे मान लीजिए मैं 1 नोट में नोट बना रही हूँ, तो वहाँ पे मेरा एक सेक्शन होगा जो कि सोसाइटी के लिए होगा। सोसाइटी में ही जो भी यहाँ पे टॉपिक्स दिया हुआ है ना, ये टॉपिक्स के लिए मेरे पास एक पेज होगा, वहाँ पे मैं पहले स्टैटिक नोट्स मतलब इंट्रोडक्शन हो गया, फिर बॉडी पार्ट में जो भी टॉपिक्स हो सकता है उसको मैंने एक साथ इकट्ठा कर रही हूँ। ऐसे मैंने एक पेज का एक नोट्स बना के रखूँगी, स्टैटिक नोट। फिर मैंने जब भी न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, वहाँ पे अगर कुछ रेलेवेंट केस स्टडी या मान लीजिए कुछ करंट अफेयर्स का मटेरियल मुझे मिल रहा है, तो मैं अपना वो स्टैटिक नोट्स को वो करंट अफेयर्स मटेरियल के साथ अपडेट करूँगी। ऐसे मैंने सोसाइटी का भी तैयारी की थी। फिर मान लीजिए सोसाइटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिर जियोग्राफी का आते हैं। जैसे यहाँ पे फिजिकल जियोग्राफी ना, जैसे फिजिकल जियोग्राफी आप यहाँ पे मैंने अच्छे से बताया है। जैसे जियोग्राफी का आप कैसे कर सकते हो, वही लेयर्ड अप्रोच की एक स्टेयर्ड अप्रोच में आप चलिए धीरे धीरे। फाउंडेशन के लिए मुझे लगता है कि फिजिकल जियोग्राफी से स्टार्ट करना सबसे मतलब फिजिकल जियोग्राफी से स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट आई स्टार्टेड विथ फिजिकल जियोग्राफी एनसीईआरटी 11th क्लास की किताब पार्ट 1। देन आई मूव टू इंडियन जियोग्राफी दैट क्लास 11 एनसीईआरटी 11th क्लास पार्ट 2।
Then I moved to Economic and Human Geography, NCERT 12th क्लास पार्ट 1 एंड पार्ट 2. देखिए मैं जो बता रही हूँ बार बार आपको कि फाउंडेशन, ये आपका फाउंडेशन लेवल हो गया, और फाउंडेशन लेवल में भी आप पहले फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो, उसके बाद आप इंडियन ज्योग्राफी पे मूव कर रहे हो, और उसके बाद इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के, और वो भी बेसिक एनसीईआरटी. और मैं जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है कि एनसीईआरटी सारा नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि कौन कौन सा एनसीईआरटी आपको पढ़ना है. 11th क्लास की पढ़ लीजिए. अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप अकॉर्डिंगली 10th 9th 8th ऐसे करके जा सकते हो थोड़ा थोड़ा, और वो भी जो भी एनसीईआरटीज में बॉक्स दिया रहता है डू यू नो टाइप, वो उससे आप सब्सटेंशिएट कर सकते हो आपका ये वाला 11th क्लास में नोट्स के साथ. फिर एडवांस स्टेज में मैंने क्या किया था, जैसे सुदर्शन गुर्जर सर की कुछ यूट्यूब वीडियोस आती है, उनका वो यूट्यूब क्लास नोट्स को मैंने रेफ़र किया था, और उनके स्पेशल क्लासेस भी आती थी अनअकैडमी में, तो उसका मैंने थोड़ा रेफ़र किया. और केएसजी का क्लास नोट्स, क्योंकि मैंने कोलकाता के इंस्टीट्यूट में थोड़ा पढ़ाई कर रही थी SNT CSA से, तो वहाँ पे जो क्लास नोट्स मुझे मिल रहा था उससे मैंने रेफ़र किया एडवांस स्टेज में. तो मैं कोचिंग के ऊपर बस पूरा डिपेंडेंट नहीं थी, मैंने मेरा बेसिक फाउंडेशन मैंने खुद बनाया, फिर एडवांस स्टेज में ही मैंने कोचिंग का मटेरियल रेफर किया है. फिर जब मेरा स्टैटिक कंप्लीशन हो गया, आफ्टर स्टैटिक कंप्लीशन अलॉन्ग विद स्टैटिक प्रिपरेशन, देन आई ट्राई टू सब्सटेंशिएट और अपडेट माय स्टैटिक पोर्शन विद करंट अफेयर्स. फॉर एग्जांपल टर्की में अर्थक्वेक आया था जब मैं प्रिपेयर कर रही थी ना, तो जो मेरा फिजिकल ज्योग्राफी का जो नोट्स था, जहाँ पे मैंने अर्थक्वेक के बारे में नोट्स बनाया था, उसको मैंने वो नोट्स को मैंने सब्सटेंशिएट किया ये टर्की के अर्थक्वेक के न्यूज़ से. ठीक है, तो ऐसे फिर मैंने थर्ड लेवल में करंट अफेयर्स की तैयारी की, और फिर मैंने जो भी MCQ लगाई उससे मैंने कंटिन्यूअस अपडेशन मैंने करती गई. तो ये था एक डिटेल्ड अप्रोच जो कि आप GS पेपर 1 के लिए पढ़ सकते हो. मैंने अच्छे से ये वाला डॉक्यूमेंट मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड कर दूंगी, और या सेपरेट एक डॉक्यूमेंट बना के कि फाउंडेशन लेवल में, एडवांस लेवल में करंट अफेयर्स के लिए आप क्या क्या फॉलो कर सकते हो, कैसे फॉलो कर सकते हो, टोटल बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज. और फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोज आई विल बी ट्राइंग टू डिस्कस with you regarding GS paper 2, GS paper 3, GS paper 4 ethics and also essay. Okay, so I hope that this video was useful for you. Let me know if you want anything any material or any other information. I'll be happy to share with you all. I know that how is difficult for you to go with this preparation phase, but as I also have faced similar problems, similar issues during my time, so and this is a completely free initiative and I am here to help you. So just let me know, just try to approach with any doubt, any queries through my Telegram channel. I'll be happy to help with you to you all. So thank you, stay tuned, happy learning.